Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. I hope you all are fine at home. Today I am going to explain you a poem. Okay? But before start our session, we will do a prayer. Now relax. Okay? Now look at here. Poem number 1. The Ant and the Cricket. This poem is taken from Honeycomb NCERT book. Students, now I am going to explain you introduction. It means about something poem. Something about poem. The Ant and the Cricket is a fable written in the form of poem. A poem is written by a Greek writer Aesop. A fable is a short story in which animals behave like humans and convey a message, give us a moral, right? इस एक्सप्लेनेशन में, इस इंट्रोडक्शन में एंड और क्रिकेट एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है जिसको पोयम के वे में लिखा गया है और इसे लिखने वाले हैं ग्रीक राइटर एसॉप। और ये फैबल इट मींस हिंदी में जिसको हम दंत कथा कहते हैं। ये शॉर्ट स्टोरीज होती हैं बट पोयम के वे में बताया गया है। और इस फैबल में मोस्टली एनिमल्स कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं बट लाइक अ ह्यूमन, इंसानों की तरह, और हमें कुछ मैसेज और सीख मोरल देते हैं जो हम अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। Students, look at here. Now I am going to explain you new words. It means just hard words जो पोएम में हमें थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, जिनकी हमें मीनिंग पता होनी चाहिए, राइट? Accustomed to sing. It means used to singing. जिसको गाने की हैबिट हो, in the habit of singing, same thing, used to हो. Okay? The next is famine. It means scarcity of food, यानी खाने की कमी होना। Having nothing to eat, कोई भी चीज खाने की या कुछ भी चीज हम खाने की हमारे पास न होना, जिसको हिंदी में हम अकाल कहते हैं, राइट? Lay nothing by, यानी it means save nothing, कुछ भी सेव नहीं करना, कोई भी चीज को कलेक्ट करके अपने पास न रखना। कोट, इट मीन्स सेट, बोलना। कॉम्बैट, टू फाइट विथ, किसी के साथ फाइट करना, हंगर के साथ। इसमें एक्चुअली ये वर्ड यूज किया गया है पोयम में जब क्रिकेट फाइट कर रहा है अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, चीजों को कलेक्ट करने के लिए, हेल्प के लिए, जब वो एंड के पास जाता है, राइट? नाउ लास्ट वन इज टॉल, इट मींस चेंज करना, बदलाव। ओके? नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोयम, स्टैंजा वाइज पोयम। नंबर 1 स्टैंजा इज a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. In these lines the poet says that there was a silly young cricket who was habituated to sing during the spring and summer season. Winter came. Now the cricket was in trouble. He began to complain when he found
that his cupboard was empty at his home. In these lines, पोएट ये कह रहे हैं कि सिली यंग क्रिकेट था जिसको हैबिट थी गुनगुनाने की, सिंगिंग करने की, ड्यूरिंग समर और स्प्रिंग सीज़न में, यानी उन सीज़न के दौरान वो गुनगुनाता ही रहता था। और जब विंटर आई थी तो वो मुसीबत में पड़ गया था। वो क्या थी? उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया था। क्या कंप्लेन थी? जब वो घर पर गया उसने अपने कपबोर्ड्स देखे तो वो एम्प्टी थे, यानी उस कपबोर्ड के अंदर कोई भी चीज़ नहीं थी जो वो खा सके। Now students, stanza 2. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? In these lines, the poet says that there was not even a crumb. Crumb का मतलब होता है a small piece of bread. There was snow on the ground and he could not see even one flower or a leaf on a tree. Seeing this, he becomes sad and exclaims, "Oh, what will become of me?" In these lines, poet ये कह रहे हैं कि जब उसने घर पर अपना कपबोर्ड देखा तो वो एम्प्टी था, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं थी खाने की, एक छोटा सा पीस ब्रेड का भी नहीं था जो वो खा सके। और जैसे ही उसने बाहर देखा तो पूरा ग्राउंड स्नो कवर्ड था। इवन वो ट्री पर एक फ्लावर और एक लीफ भी नहीं देख पा रहा था। ये सब देखकर क्रिकेट बहुत उदास हो गया और अपने आप में फील करने लगा और कहने लगा, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैंजा. At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant. In these lines, poet says, the cricket was starving due to famine, hunger, and no resources to sustain himself during cold months of winter. The winter had taken a toll of his health. He also had no shelter. He therefore set out to meet a clever and hard-working ant, hoping that the ant may help him with something that would keep him alive. In these lines, पोएट ये कह रहे हैं कि जब क्रिकेट को कोई भी चीज़ खाने की नहीं मिली तो वो भूख से तड़प रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अकाल आ गया है और उसे कोई भी रिसोर्सेज यानी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिससे वो अपने आप को सस्टेन कर सके, यानी अपने आप को ज़िंदा रख सके उन कोल्ड मंथ्स, विंटर के कोल्ड मंथ्स के दौरान। जब विंटर आई तो उसकी हेल्थ को उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। न ही उसके पास छत थी यानी घर था, शेल्टर था। ही देयरफॉर, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड क्लेवर और हार्ड वर्किंग एंट के पास मिलने के लिए निकल पड़ा और उसे ये आशा थी, होप था कि एंट उसे मदद करेगी, कुछ खाने की चीज़ देगी, कुछ भी चीज़ें देगी उसे खाने के लिए जिससे वो अपने आप को जिंदा रख सके। ओके स्टूडेंट्स?
Now students, stanza 4. Him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. In these lines, the poet says that the cricket approaches the ant to seek his help for shelter. The rains made it difficult for the cricket to protect himself from wet surroundings. He also needed some grains or food to combat hunger and starvation. He informed the ant that whatever help he would take, he would repay it soon, else his end had come, he would die of starvation and sorrow. In these line, पोएट ये कह रहे हैं कि क्रिकेट जब एंट के पास मदद के लिए गया था कि उसे वो कुछ खाने की चीज़ और छत देगी जिससे वो अपने आप को स्नोफॉल से बचा सकेगा, क्योंकि चारों ओर स्नोफॉल की वजह से वेट सराउंडिंग्स थी, वो अपने आप को बचा पाए और उसे फूड की ज़रूरत थी जिसकी वजह से वो अपनी भूख को मिटा सके। उसने एंट को ये भी बताया, ये भी कहा कि आप मुझे जो भी हेल्प मदद करोगे, व्हाटएवर हेल्प, जो भी हेल्प करोगे, मैं आपको उसके बदले रीपे कर दूंगा, जल्दी ही मैं आपको वो लौटा दूंगा। अगर नहीं तो मेरी एंड नज़दीक है, भूख और दुख की वजह से, भूख की वजह से मेरी डेथ भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड?